हेलो गाइस, आई एम दी बोगस डॉट एंड दिस इज द कॉन्टेक्स्ट मेडिसिन. सो आज हम पढ़ेंगे. टुडे वी विल रीड द आरटीए, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस. ओके. सो एसिडोसिस का लिटरल मीनिंग क्या है? यहाँ पे ब्लड में हो रहा है या यूरिन में हो रहा है? एट विच प्लेस? सो एसिडोसिस इज अकरिंग इन द ब्लड एज किडनी इज फेल्ड टू रिमूव द एसिड इफेक्टिवली. ओके. इट्स इफेक्टिवली है यहाँ पे वर्ड याद रखना, कंप्लीटली नहीं है. ठीक है. इस टेबल को लेटर एक्सप्लेन करेंगे, बट जो ग्रीनिश है वो आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, है ना? ठीक है. Okay, so अब देखते हैं हम RT type 4. As kidney is not responding to aldosterone. Okay, so what is the normal function of aldosterone? Normally, it absorb the water and sodium and excrete the H plus and potassium. Okay, so what will happen here? As you know, H plus and potassium is now not excreting, so hyperkalemia and acidosis is occurring, and water and sodium is losing. Okay. So here one thing is that kidney is not responding or there is low aldosterone. Okay. So focus on this point, kidney. As you know, kidney is normal. Okay. But only there is aldosterone dysfunction or resistance. Okay. So any disease that cause kidney to dysfunction will include here, and you can explain the pathophysiology by that. Like in diabetes, most of the cases are diabetic nephropathy. CKD, you know, kidney disease. Medication like ACE inhibitor, you know, it affect kidney. NSAID, you know, it affect kidney. Heparin also affect kidney. So drug or disease that affect the, remember by this, that drug or disease that affect the tubulointestinal disease. Okay, where aldosterone works, like sickle cell anemia, it also inhibit the tubulointestinal activity by blocking that. Okay, blood supply or adrenal disease itself. Okay, so what will be the pH of blood? As you know, K plus is increasing, muscle weakness, fatigue, arrhythmia, irregular heart rate. Bicarbonate is come because first thing you remember, NH3 is detoxified in the liver, but urine, in the urine NH3 is also making. So to compensate the H plus, okay. So to compensate the extra H plus, SCO3 will form in the blood and it will excrete like H2O plus CO2. So in the compensation factor, CO2 will be decrease here. Okay. So in the compensation, CO, not CO2, in the compensation, the HCO3 will be decreased. Okay, in the blood. So this is the cause. Okay. You know, aldosterone and low resistance and kidney normal or decrease function. Okay. Now you will see HK plus is more patient present with muscle weakness, fatigue, arrhythmia or irregular heart rate. According to cause, treatment कीजिए either or give the fludrocortisone, that is the aldosterone agonist. Okay. Now let's move to the type 1 defect in distal tubule. Remember, डिस्टल ट्यूबुल के अंदर क्या डिफेक्टिव है? H प्लस एटीपीज और H प्लस के प्लस एटीपीज. ये क्या होते हैं? एंटी पॉटर होते हैं. देखिए यहाँ पे H प्लस के प्लस. तो सिंपल एक तरीका याद करने का ये है कि एज के प्लस इज H प्लस के प्लस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो H प्लस विल लूज, तो पेशेंट विल गेट इनटू हाइपोकैलेमिया. ओके. बहुत सारे मेथड है, उसमें से एक सिंपल जो आपको रिमेंबर करना है वो है ये हाइपोकैलेमिया. यहाँ से हो रहा है. ठीक है. एज पेशेंट इज अनेबल टू एक्सक्रीट द एसिड, द ब्लड पीएच विल बी मोर देन 5.3. ओके. अब यहाँ पे देखिए डिस्टल ट्यूब्यूल ऑल्सो. अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्टल ट्यूब्यूल ऑल्सो हेल्प इन HCO3 एब्जॉर्प्शन इनडायरेक्टली. ओके. Indirectly by these function. Okay, the edge H plus is not going in by this method. Okay, so edge HCO3 is also get wasted. Okay, simple. Edge HCO3 is getting wasted, pH will be more than 5.5. Okay. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एसिड निकल रहा है, जो मेटाबॉलिक एसिड, उसके अंदर जो H प्लस एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, बोन के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फेट है उसमें H प्लस फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाएगा. इससे क्या हो जाएगा, जो फ्री कैल्शियम वो इंक्रीज हो जाएगा और ये इट विल पास इन द यूरिन एंड मेक द स्टोन्स. सिंपल यहाँ पे क्या होगा, एज HCO3 इज ऑल्सो गेटिंग वेस्टेड. ठीक है. डिस्टल ट्यूबल वहां भी एब्जॉर्ब कर रहा है तो पीएच मोर देन 5.5, तो एल्केलाइन यूरिन भी इसको क्या कर रहा है, यूरिन स्टोन फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है. ऑल्सो एक चीज याद है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लेस सिट्रेट टू एडजस्ट. वाई? क्योंकि पीसीटी के अंदर ज्यादा सिट्रेट एब्जॉर्ब हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो HC3 हुई है, जो HCO3 है, उसको बफर करना है. ओके. तो HCO3 क्या करता है, जो सिट्रेट क्या करता है, HCO3 बनाता है. सिंपल.
और ये SCO3 किसमें हेल्प करता है, बफर करने के अंदर, ठीक है। सो इसलिए जो सिट्रेट है वो लेट्स अवेलेबल रहता है। ओके, सो तीन फैक्टर हो गए, एक ये कि भाई कैल्शियम इजीली पास हो रहा है यूरिन के अंदर, एक एल्कलाइन यूरिन, और सिट्रेट एक लेस अवेलेबल है। दैट्स वाई स्टोन इज मोर कॉमन इन टाइप 1 RTA। इसकी इटियोलॉजी क्या है, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज एडल्ट्स के अंदर, एसिलिजोग्रेन, और ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी, फॉस्फामाइड, लिथियम। ओके, अब याद करते हैं कंसेप्ट है यूरिनरी एनायन गैप। नॉर्मली क्या होता है यूरिन एनायन गैप, यूरिन सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड होता है, ठीक है। इट विल बी स्लाइटली नेगेटिव, नॉर्मल कंडीशन में स्लाइटली नेगेटिव होता है। देखो, इफ पॉजिटिव है यूरिन एनायन गैप तो आरटीए जो मैंने यहाँ पे याद रखना है, और यदि यूरिनरी एनायन गैप नेगेटिव है तो जीआई लॉस को शो कर रहा है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे देखो आरटीए टाइप 1 इट इज पॉजिटिव, वाई आर नॉर्मली क्या होता है स्लाइटली नेगेटिव होता है, लेकिन आरटीए टाइप 1 के अंदर स्लाइटली पॉजिटिव क्यों है ये, ओके समझते हैं। नॉर्मली यूरिनियन एनायन गैप क्या काम में आता है, यूज टू एस्टिमेट NH4 प्लस एक्सक्रीशन एस किडनी वांट टू गेट रिड ऑफ एसिड एज NH4 प्लस। किडनी क्या करना चाहती है, एसिड से रिड होना चाहती है, बाहर निकालना चाहती है एसिड को NH4 प्लस के रूप में। यहाँ पे पहला डाउट जो आता है कि सर NH3 आ कहाँ से रहा है, NH3 तो क्या हो रहा है, सेल लीवर ने क्या कर दिया, NH3 को कन्वर्ट कर दिया, ओके, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिक एसिड में। एक्चुअली यहाँ पे ग्लूटामिन और मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो कि खुद NH3 बनाते हैं, क्यों, क्योंकि एसिड को रिड चाहिए होता है। दैट्स व्हाई किडनी हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक फैक्ट्री टू मेक द NH3 और अमोनिया टू एक्सक्रीट द H+। सो अब यहाँ पे क्या करना है, क्या हो रहा है कि इस किडनी वांट टू गेट रिड ऑफ एसिड NH4 प्लस, बट NH4 प्लस इट नॉट मेजर डायरेक्टली, आप NH4 प्लस को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं किडनी के फंक्शन को देखने के लिए। सो क्या किया है यहाँ पे, बट एक बार यहाँ क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, टू मेंटेन, अब क्योंकि किडनी NH4 को एक्सक्रीट कर रही है और इस पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्लोराइड भी क्या हो रहा है इसके साथ एक्कम्पनी हो रहा है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इफ पेशेंट इज एक्सक्रीटिंग मोर क्लोराइड मींस मोर एसिड इज एक्सक्रीशन, मींस द किडनी इज बेटर। एज यू नो, यहाँ पे क्लोराइड इंक्रीज हो जाता है, यूईजी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट्स वाई इट्स बेटर कि यदि आपका यूरिनरी एनायन गैप क्या हो, स्लाइटली नेगेटिव हो, तो नॉर्मल कंडीशन और बेटर कंडीशन के अंदर स्लाइटली नेगेटिव होता है यूरिनरी एनायन गैप। इन आरटीए टाइप 1 क्या हो रहा है, एज किडनीज फेल टू सीक्रेट H प्लस, less NH4 plus is produced, less chloride is available. Okay, as less NH4 plus is producing, less chloride will be excreted, so urinary anion gap will be positive here. Okay, done. तो यूनियन एन गैप पॉजिटिव कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है टाइप 1 आरटीए के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 2 आरटीए और जो पीसीटी है प्रॉक्सिमल को अफेक्ट करता है, फेल टू एब्जॉर्ब SCO3 इफिशिएंटली। अब यहाँ पे SCO3 कॉज है, बाकी जगह क्या होता है H प्लस है, यहाँ पे SCO3 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, SCO3 वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो SCO3 वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब रिलेटिवली बॉडी किसमें, एसिडोसिस के अंदर है, ओके। ये क्या करता है, SCO3 ड्रैग करता है सोडियम H2O को DCT के पास में। अब ये क्या करती है, जो प्रिंसिपल सेल है DCT की, ये क्या करती है, इनेक को एक्टिवेट करके रिजॉर्ब करवा देती है सोडियम को, और इसके कारण पोटेशियम को क्या करवाती है, इलेक्ट्रो न्यूट्रल करवाने के लिए एक्सक्रीट करवा देती है, लेकिन ये बहुत माइल्डली होता है, ठीक है, डन। सो ईटियोलॉजी क्या है इसकी, जेनेटिक, जैसे फानकोनी, यदि डिजीज है तो इसके अंदर पेशेंट के अंदर ग्लाइकोसूरिया भी होगा, अमीनो एसिड यूरिया भी होगा, फॉस्फेट भी एक्सक्रीट होगा, यूरिकोसूरिया भी होगा। एक्वायर्ड है तो ड्रग जैसे एसिटाजोलामाइड या टोपिरामाइड, डिजीज जैसे मल्टीपल माइलोमा, माइलोडोसिस, है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि डिस्टल नेफ्रॉन केपेबल है अभी एक्सक्रीशन करने के लिए, भाई डिजीज किसकी, प्रॉक्सिमल की, लेकिन डिस्टल नेफ्रॉन केपेबल है एक्सप्रेस एक्सक्रीशन के लिए, एज बॉडी इज लूजिंग बाइकार्ब, बट बॉडी विल सेव एनायन। ओके, तो बॉडी क्या सेव करेगी, इसलिए पेशेंट के अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं से एनायन सेव करेगी, तो हाइपर क्लोरीमिया, वहां पे क्या हो रहा था, ऊपर क्लोराइड एक्सीट हो रहा था कंपनसेट करने के लिए नॉर्मल बॉडी के अंदर, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर क्लोरीमिया हो रहा है, क्योंकि HCO3 लूज कर रही है बॉडी उसको सेव करने के लिए। क्रॉनिक एसिडोसिस फेवर्स द रिकेट्स, सिंपल, तो यहाँ भी रिकेट्स की पॉसिबिलिटी है। पीएच लेस देन 5.5 बिकॉज ऑफ एसिडिफिकेशन क्या है यहाँ पे, इंटेक्ट है, कैसे, क्योंकि H प्लस डिस्टल ट्यूब्यूल का वो क्या कर रहा है, केपेबल है H प्लस एक्सक्रीशन के अंदर। CAG UAG मोस्टली यहाँ पे वेरिएबल रहता है, ट्रीटमेंट है इसका क्या करेंगे आप, क्योंकि SCO3 पेशेंट के पास है नहीं, तो SBC और माइल्ड हाइपोकैलेमिया हो रहा है, एज यू नो, यहाँ पे एक्सक्रीट पोटेशियम इलेक्ट्रोन्यूट्रल करने के लिए, इसलिए यहाँ पे पोटेशियम को सप्लीमेंट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या है, एज वी आर लूजिंग SCO3 H प्लस विल बी देयर, तो परसिस्टेंट क्या होगा, H प्लस रहेगा बॉडी के अंदर, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है, और बोन क्या करता है, एल्कलाइन सॉल्ट को रिलीज करता है, ओके। सो फर्क करता है
ये क्या करते हैं, दोनों बफर करते हैं एक दूसरे को एट कॉस्ट ऑफ डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। ओके, स्पेशली फानकोनी के अंदर क्या रीजन है उसका, हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो दैट्स वाई इसके अंदर, किसके अंदर, आरटी टाइप 2 के अंदर क्या होता है, रिकेट्स कॉमन मिलता है, आरटी टाइप 1 के अंदर भी कॉमन मिलता है, लेकिन मोर किस में मिलेगा, आरटी टाइप 1 के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन हो गए आरटीए। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे एक डाउट है कि भाई सर यहाँ पे लेस देन 5.5 क्यों हो रहा है टाइप 4 के अंदर। इसके अंदर ये है क्योंकि H प्लस के प्लस एटीपीएस पंप नॉर्मल है, ओनली एल्डोस्टेरोन डिफेक्टिव है, लेकिन किडनी नॉर्मल है। किडनी नॉर्मल है तो कुछ फेस कुछ मतलब लिमिट के अंदर H प्लस एक्सक्रीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन 5.5 है। ओके, प्रॉक्सिमल टाइप 2 के अंदर और ये टाइप 1 के अंदर, टाइप 1 का मैंने बता दिया कि एल्कलाइन की तरफ क्यों फेवर कर रहा है, क्यों, यूरिन बन रहा है। हाइपर कैलेमिक यहाँ कॉज बता दी मैंने, हाई क्यों है, पोटेशियम क्यों है टाइप 2 के अंदर, और इसके अंदर ऑलमोस्ट क्या है, HCO3 का क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए इसमें हायर साइड है। ओके, सो आई थिंक मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। यू कैन सी द क्वेश्चंस एंड रीड फ्रॉम योर बुक और नोट्स टू मेक इट understand completely. Thank you. Keep following, keep sharing, and do the question that I will post now.